السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال اس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت پتمس درسس من پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریو حکم کہ جو عورتیں ہیں ان کو ان کا مہر ادا کیا کرو اور یہ ون کہ اگر تم خاتون تہ کان مہرک حصہ یا کل کا کل مہر معاف کریں خوش دلی سان تو اس کو کھانے میں یا اس کو برتنے میں آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے آزچ آیت یزن بہرحال امہ آئے مبارک یس زن ترجم سہ پڑھو البتہ یاد دہانی خاطر کر بہ تہ بی اکہ ساتنس یہ رپیٹ اس پڑھو پتمن آیتن مز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا تھا جو یتیموں کے ولی ہیں انہیں حکم کیا گیا تھا وآتوا الیتامی اموالہم کہ یتیموں کو ان کا مال واپس کرو یعنی جب یتیموں کا مال آپ کے پاس ہو بحیثیت ولی تو ان کو وہ مال واپس کیا جائے اس کو بدل کر یا اس میں سے خبیث حصہ ان کو نہ دیا جائے بہرحال تاتن روزو اخ اشکال کہ یتیموں کو کب مال دیا جائے گا واپس میں ون تم ساتن تہ کہ برہ کن پکت پڑھو کہ یتیموں کو ان کا مال کب سپرد کیا جائے گا یم آیات یم زن یمن مز امہ چیزچ آمز وضاحت کرنے کہ یتیمس کر یہ تم سن مال واپس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اور نادانوں کو ان کا مال واپس نہ کرو یعنی جو مال آپ کے پاس ان یتیموں کا ہے تو جب یتیم نادان ہوں جب وہ نابالغ ہوں تو اس حالت میں ان کو یہ مال واپس مت کرو التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم ہاں کون سا مال وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زیست کا سامان بنایا ہے یعنی وہ مال جس پر آپ کا زندگی گزارنے کا انحصار ہے اس مال کو ان یتیم بیقل اور نابالغ یتیموں کو واپس سپرد مت کرو وارزقوہم اس میں سے ان یتیموں کو کھلاؤ وکسوہم اور ان کو پہناؤ وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے ساتھ بہترین انداز میں بات کرو بہرحال امچ کیا وضاحت میں آپ کے سامنے وہ وضاحت رکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو یتیموں کے ولی ہیں ان کو یہ حکم کیا ہے کہ یتیموں کو بالغ ہونے تک یا جب تک کہ وہ یوتانی تم عقل مند بنن یوتانی تمن ہوش ہی پور تب تک ان کو ان کا مال واپس مت کرو بلکہ تب تک اس کی نگہبانی کرو تب تک اس کو اپنی تحویل میں رکھو اور تب تک اس کی حفاظت کرتے رہو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو یتیموں کا مال ہے اور جو چھوٹے بچوں کا مال ہے تب تک ولی اس کی حفاظت کرے گا جب تک کہ وہ یتیم یا جب تک کہ وہ چھوٹا بچہ بالکل عقل کو نہ پہنچے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمان کہ ورزقوہم ہاں اس مال سے ان کو کھلاؤ وکسوہم اور اس مال سے ان کو پہناؤ کیونکہ ہے تو وہ اصل میں انہی کا مال اس لیے اس مال سے ان کو کھلاؤ بھی ان کو پلاؤ بھی وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے ساتھ بہترین انداز سے بات کرتے رہو بہرحال یہ کیا کو مطلب ان سے بہترین انداز میں بات کرتے رہو یعنی اگر وہ کبھی مطالبہ کرے کہ ہمیں اپنا مال واپس کرو
हमें अपना माल वापस दे दो, तो उनको बेहतरीन अंदाज से और भले अंदाज से समझाओ कि अभी आप बिल्कुल उतनी अक्ल को नहीं पहुंचे हैं कि आप अपना भला और बड़ा सोच सको, और आप इतनी अक्ल को नहीं पहुंच सकते हो चाहे कि नुकसान के मालस बात नहीं। इसलिए जब तक कि आप पूरी अक्ल को नहीं पहुंचोगे, शऊर को नहीं पहुंचोगे, तब तक ये माल मेरे पास रहेगा। हाँ, तब तक जो इनकी जरूरियात हैं उन जरूरियात के लिए उनका माल खर्च करते रहो। दय्यम कत यस जन यथ मज अहम कत अल्लाह ताला फरमान वला तुअतु सफहा अमवालकुम, बेवकूफों को, बेअक्लों को उनका माल तब तक न दो। इसमें दोनों किस्म है। अगरचे यह आयत यतीमन मुतलिक आमज, यतीमों के वलियों के मुतलिक, मगर इसमें आम लोग भी शामिल हैं। क्या मतलब? कंस इंसान लकट बच्चे पान, वो यतीम नहीं, उनके अपने बच्चे हैं, उनको भी इस आयत की रूह से माल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उस माल को जाया कर सकते हैं, वो उस माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनको भी तब तक माल नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो पूरी अक्ल को न पहुंच जाए। इसीलिए उलमा ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि इंसान को चाहिए कि वो अपना पूरा माल अपनी औरतों और बच्चों में तकसीम न करे और बाद में चलकर वो उनका मुंह तकता रहे और उनका मोहताज बनकर रहे, बल्कि उसे कुछ माल अपनी तहवील में भी रखना चाहिए ताकि वो उसमें खर्च कर सके और अपनी जरूरियात पूरी कर सके। दय्यम कथा अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, उस माल में से जिस माल को अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी गुजरान का जरिया बनाया है। यानी यहाँ पर माल की तारीफ की गई है कि माल से आपकी जिंदगी का गुजर बसर होता है। अगर तो वुचमुत आसो कुरान पाकस मज अल्लाह तबारक व तआलाहन वारियाहन जायन मालच कर्मज यथ क्या वनान मालदारी हज कर्मज नफी, या इंसान वोनमुत कि माल के तमा निश, माल के हिरस निश था पन पान दूर। ये तो कुरान की तालीम है, लेकिन माल कमाना, माल का होना ये कोई बुरी बात नहीं है। अलबत्ता माल की मोहब्बत, माल की यजन माल खूब आसन और इस माल की वजह से अल्लाह के हुक्मों को पसे पुष्ट डाल देना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे इंसानों को रोका है। वरना यहाँ पर कहा गया है कि उस माल को, जिस माल पर आपकी जिंदगी का दारोमदार है, उस माल को यतीमों को, उन बेअक्ल यतीमों को या बेअक्ल बच्चों के हाथ में मत दो, क्योंकि वो उस माल को जाया कर सकते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता बच्चे होने की वजह से, यतीम होने की वजह से, नाफहम होने की वजह से जो उनकी जरूरियात हों, खाने पीने की जरूरियात, पहनने की जरूरियात, उसके लिए उनको आप वो माल दे सकते हो। अच्छा, दूसरी बात यजन यथ आय वन, बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला पर वक़ूलु लहुम क़ौलन मैसूर, ये वक़ूलु लहुम क़ौलन, ये क़ौलन मारूफा। हाँ, उनके साथ क्या करो? बेहतरीन बात। यानी जब वो मुतालबा करेंगे किसका? माल का, या जब वो मुतालबा करेंगे अपने हिस्से का, उनसे कहो कि अभी आपकी इतनी फहम, उनके पास इतना फहम नहीं है कि चाहे क्या नुकसान के रित अंदाज, झिड़को मत उनको बेइज्जती मत करो, बल्कि असल अंदाज से उनको समझाओ कि ये माल आपका ही है, लेकिन मुनासिब वक्त में आपको ये मिलने वाला है। ये समझो आप। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर, मैं ये पढ़ूंगा, यहाँ बेसमझू से मुराद वो लोग हैं जो माल के इंतजाम की सलाहियत न रखते हों। यानी आयत में कहा गया है कि नादानों को उनका माल वापस न करो। यानी नादान यम जन आसन, लकट बच्चे यम जन आसन, तुमन मा करियो पनुन माल वापस के। तो नादान से मुराद क्या है? यहाँ बेसमझू और नादानों से मुराद वो लोग हैं जो माल के इंतजाम की सलाहियत न रखते हों। इसमें छोटे बच्चे और नातजुर्बाकार बीवी भी आ जाती है। यानी बीवी के पास भी अगर माल हो और आपको मालूम हो कि बीवी ये इस माल को सही तरीके से संभाल नहीं सकती है, तो उनको भी आप माल नहीं देंगे तब तक जब तक कि उनमें ये सलाहियत ना आ जाए। यानी अगर यतीम नातजुर्बाकार और कम अक्ल हूं तो वसी या मुतवली को चाहिए कि यतीम के माल से उसके खाने पीने और लिबास का इंतजाम करता रहे, मगर वो माल इसके सुपरद न करे। यानी माल करने अमिस सुपरद, क्योंकि वो इस माल को क्या कर सकता है? जाया कर सकता है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि 3 आदमी अल्लाह से दुआ करते हैं मगर उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। उनमें से कौन कौन आदमी? एक वो आदमी जिसकी बीवी बदखुलक थी, फिर उसने उसे तलाक न दी, और एक वो आदमी जिसका किसी शख्स के जिम्मे माल था मगर उसने उस पर कोई गवाह नहीं बनाया, और एक वो आदमी जिसने किसी बेवकूफ को अपना माल दिया जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है तो कि तुम बेवकूफों को अपना माल न दो।
यानी अल्लाह तबारक व तआला रसूल ने हदीस में फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं होती है। तुम मुझे आख इंसान सु यमिस निश कांसे नाफहम सुन या कांसे बच सुन माल हो, चाहे वो यतीम था या वो उसका अपना बच्चा था, उसने नादान होने के बावजूद भी उसको वो माल दिया, और उस आदमी ने, उस नादान बच्चे ने या उस नादान यतीम ने उस माल को क्या कर दिया, बल्कि तमिस पजे अम माल तो हिफाजत कर योतान सो बच्चे क्या गए बालिग। दूसरी आयत, इसमें मजीद इसकी ये वजाहत है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। हाँ, आप इस यतीम के माल की हिफाजत करते रहो, कब तक, जब तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। निकाह की उम्र से मुराद है जब तक कि वो बालिग हो जाए, यानी ये तान तमिस पर बलूगत के असरात yin। बलूगत के असर क्या गई, यानी जब बालिग आसने निशानी यम तमिस पे जाहिर गसन, तब तक इसके माल की क्या करते रहो, हिफाजत करते रहो। और अल्लाह ताला ने फरमाया वब्तलुल यतामा, यतीमों की आजमाइश करते रहो। आजमाइश से मुराद क्या है, थोड़ा थोड़ा माल इनको दे दो, यम साथ बालिग गसन इमन थोड़ा माल दिवन, ताकि अत मज करियो आजमाइश, यह क्या अत मालस हिफाजत करित, यह क्या खरीदो फरोख्त असल पट करित, यह क्या सौदा करित असल पटनस, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि हाँ अब ये अपने माल की हिफाजत कर सकता है और अब ये इसमें क्या कर सकता है, इंतजाम कर सकता है। अवश इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लिखमत कि अगर कांसे बच्चस हाथ ये माल दिन और वो उस माल के जरिए कोई खरीदो फरोख्त करेगा, वो खरीदो फरोख्त जो जन वो बिल्कुल मोतबर खरीदो फरोख्त होगी। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि यतीम बच्चों को, नाफहम बच्चों को थोड़ा थोड़ा माल देकर उनकी आजमाइश करो और टेस्ट करो कि अमिस मज आमुद फहम क्या न। अच्छा, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, तो यहां से पता चलता है कि बालिग होने की कौन सी उम्र है, जब निकाह के या बलागत के उसमें वो निशानियां आ जाएं। मुख्तलिफ फुक़हा मुख्तलिफ उम्र बालिग से, कुछ ने 16 साल का है, कुछ ने 15 साल का है, कुछ ने 18 साल का है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बालिग होने की उम्र वो 15 साल लड़कों में है, ये जन 15 साल दोनों लड़कों और लड़कियों में 15 साल उम्र, यानी ये आप लड़की या लड़की 15 वर्ष बाद वो बालिग है। अब आप उसको उनका माल क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, उनके सुपर्द कर सकते हैं। फाइन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, हाँ पस अगर तुम इनमें अकल देखो, यानी ये साथ लकट लकट क्या वन माल कम ज्यादा माल दितु पत रूदू वुशन कि यह क्या अत मालस हिफाजत कर, जब आप देखो फ़इन आनस्तुम मिन रुश्दन, पस अगर आप उनमें अकल देखो, यानी अगर आप उनमें सूझबूझ देखो, फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, तो उनके वो माल उनको वापस कर दो, अमी सातन करियो उमन ये माल उमन क्या वापस। वला ताकुलुहा इसराफ, हाँ अगर आप इनमें फहम नहीं है, यानी बालिग गसन पत्ते 15 वुहर वातन पत्ते या अमिस मज गई बलूगत निशानी ते जाहिर, अब कुरान कहता है कि इनको टेस्ट करो, इनको आजमाओ कि इनमें फहम पैदा हो गया है कि नहीं। अगर मन में फहम पौध गोमुच, कुरान कहता है फौरन इनको इनका माल क्या कर दो, वापस कर दो। अलबत्ता फुक़हा ने लिखा है कि सोशन कुरान में तफसीर किया, फुक़हा ने हदीसों से इसमें निकाला है एक मसला, वह जन कह बच्चे, कह यतीम बच्चे या कह आम बच्चे, इसमें बलूगत के आसार आ गए हैं मगर अमिस में फहम कहें, यानी यह बेअकल, अमिस वह तह पूरे सलाहियत कहें कि क्या पन्निस मालस हिफाजत कर, अमिस वह तह पाई मेन नफा क्या नुकसान क्या, तब कितनी देर हम रुक सकते हैं। तो इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है। अक्सर फुक़हा कहते हैं जब तक कि इनमें फहम नहीं पैदा होगा, योतान क्या गई फहम, चाहे ये उम्र के आखिरी चाहे सरसी उम्र कौन पे इस माल से हिफाजत करें, तब तक तो इसमें फहम आएगा। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस कुरान की आयत से कहा है कि अल्लाह ताला फरमान फाइन आनस्तुम मिन रुश्दन, फिर जब आप इनमें क्या देखो, रुशद देखो, रुशद को ये अकल गुशो। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब जहानत दी थी। वो कहते हैं कि कुरान में आया है रुशदन, ये इसमें नकरा है, इसका मतलब है कि पूरी अकल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत अकल भी अगर इनमें हो, यानी अगर उनमें थोड़ा अकल सूझबूझी तो इनको ये माल अदा कर सकते हैं। अलबत्ता वेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 साल, कोता वरी यानी 25 साल पर तो आपको देना ही देना होगा इनको माल वापस, ताकि ये खुद इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसराफ करेंगे, पाने हकिन तुम अमिक संभालित इंतजाम। अल्लाह ताला फरमान फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम वला ताकुलुहा इसराफन व बिदारन अन यकुल, हाँ अल्लाह ताला फरमान जब इनके माल की आप हिफाजत करेंगे, वला ताकुलुहा इसमें से कुछ भी मत खाओ, इसराफन यानी इसराफ मत करना इसके माल में, ये अमसन माल बुढ़ायु तो इथे पठनस, यानी इथे पठू कुन रज गंड रोस्त खर्चावन अमसन माल, उड़ायु तो अमसन माल, वला बिदारन और
यतकब्बरु, और इस डर से भी जल्दी जल्दी इनका माल मत खर्च करो कि तय खतर ओ यो लोग बालिग गए बेहतर ब्रो माल क्या खर्च ताकि यह कर पगह मुतालब यानी अम सद मालस कर पूर रश न कर अत मज फजूल खर्ची न कर अम सद बालिग गस ब्रो यह फिक्र कि यह गि बालिग पगह यह बज मे सोरे खर्च अमे ब्रो ना वमन काना गनियन फल यस्तफिफ। फिर अल्लाह तबारक तआला ने मजीद इजाफा ये वजाहत की। अल्लाह ताला फरमान युस कासा वली आसि तोह मज गनी यानी यमिस अल्लाह ताला पनुन सूजमुत आसि यमिस अल्लाह ताला पनुन माल आसि फल यस्तफिफ समा खेन अमिस यतीम सिन माल मज कहीं ते माल। वमन काना फकीर, हाँ अगर वह का फकीर अगर का गरीब और उसको इस यतीम के माल की हिफाजत भी करनी है, इसके इवज में वो उससे कुछ माल अपने लिए ले सकता है। फल याकुल बिल मारूफ, हाँ तमिस पज बड़ रुत अंदाज अम सद माल मज इस्तेमाल सह हेक अमिस यतीम सद माल मज इस्तेमाल कर यानी क्या इस्तेमाल कर यानी सह अम सद जमीन अमिस निस ताल युस अमिस खाद लागन युस अमिस मेहनत लागन युस टाइम अत दिवन ये इसमें मजदूरी निकाल सकता है और अपने लिए खा सकता है, मगर कैसे बिल मारूफ भले तरीके से। यह क्या कि गड़ांग आस मारन सोरे दप अत बह अमिस वातन सोरे आस खान ना, बल्कि भले तरीके से इसमें खाए। फाइजा दफा तुम इलहिम अम्वालम, हाँ फिर जब मौका आएगा इनको ये माल देने का, इनकी ये वरासत देने का, तो फअशहिदु अलैहिम, तो इस पर गवाह बनाओ। यानी तुम अनिक सामाजिक या महलक या पन्ने सोसाइटी हिंद जिठ अनित और तुमन ब्रोट कहीं बाज़ाब्ती लिखित पढ़ित करियो अमिस अम सज वरासत या अम सद माल हवा, ताकि ब्रोट कुन रोज पे अत मज झगड़ गुंजाइश, क्योंकि ये रोज पगह यतीम पगह अम खो मे सोरे माल, या बाकी महल्ले के लोग कहेंगे अमिस यूता माल वातन अम दित अमिस युत। तो इन जीरक और बड़े दाना इंसानों को जमा करके बाज़ाब्ती लिखित पढ़ित शाहिद बनइथ करियो अमिस पानुन माल हवा, ताकि ये रोज पूरे इत्मीनान सान कि यतीम को उसका पूरा हक मिल गया है। इसीलिए हदीस में आया है कि युस्न शाहिद बना यम साथ ये माल दी अमिस तो उसकी दुआ भी कबूल, क्यों? क्योंकि इसमें तो शक शुबहात पैदा हो गए और इसमें इस बात का भी एहतमाल है कि इसने शायद यतीम का माल गसब किया होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वकफा बिल्लाहि हसीबा, हाँ शहादत तो आपने ली, आपने तो लोगों को शाहिद बनाया, मगर वकफा बिल्लाहि हसीबा हिसाब लेने के लिए अल्लाह ही काफी। यानी याद रख जाओ, यहाँ तो आप गड़बड़ कर सकते हो, यतीम के माल को खा सकते हो या यतीम के माल को आप हड़प कर सकते हो, उसमें हिसाब कर सकते हो, मगर याद रखो वकफा बिल्लाहि हसीबा कयामत में अल्लाह ही हिसाब लेने के लिए काफी है। वहां फिर वो आपको पूरा बताएगा कि आपने यतीम के माल की कैसी हिफाजत की। बहरहाल कर समराइज आयत ये पस अमन दोन आयतन मज यतीमस आमुत जन यतीम सद वली उनको हुक्म किया गया है कि जब यतीम बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, यानी जब वो बालिग हो जाए और अगर उसमें पूरी दानाई और उसमें पूरा युजर रुशद आए तो उसका वो माल उसको वापस कर दो, और भले तरीके से वापस करो, शाहिद बनाकर, लोगों को शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर, गवाहों की मौजूदगी में उसको ये माल उसका वापस करो। हाँ अगर बालिग होने के बावजूद भी उसमें अभी वो फहम नहीं है, उसमें अभी भी इस माल को संभालने की सलाहियत नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको भले तरीके से फिर से उसमें आप उसकी हिफाजत करते रहो तब तक जब तक कि उसमें बलागत या जब तक कि उसमें रुशद और जब तक कि उसमें अकल पूरी ना आ जाए। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा कहते हैं कहां तक रुकना पड़ेगा? 25 साल की उम्र तक। हाँ इससे पहले यदि हम बालिग गसन अलग टप आप इनको ये माल उनको वापस नहीं करें, बल्कि थोड़ा इम्तिहान करके, आजमाइश करके, ताकि आपको पूरा इत्मीनान हो जाए कि ये बच्चा अब बिल्कुल बालिग हो गया है और इसमें शऊर आ गया है, अब ये अपने माल की हिफाजत कर सकता है, तब जाकर आप इसको शाहिदों की मौजूदगी में माल वापस दे सकते हैं। अमे आयत तल फिक्र तरन कि अल्लाह तबारक व तआला कूता इंतजाम कोरमुत कमियुक यतीम सद या नाफहम बच सद माल की हिफाजत। एक ये कहा गया कि अम सद वली कर अम सद माल हिफाजत, और वलियस आ ताकीद कर कि अम सद माल थ हिफाजत सान, अत मज कर इसराफ कि अत मज कर इसमें आप जल्दी जल्दी खर्च करने की ये कोशिश ना करें कि यह पगह बालिग पर में मुतालबा, इसलिए इसकी पूरी पूरी हिफाजत करना। और दईमा यह तहान कि हंग मंगे कर अमिस माल क्या, बल्कि गो कर बाज़ाब्ता आजमाइश, ताकि पूर लगी पाई कि अमिस फहम गम, और जब माल वापस करोगे तो गवाहों की मौजूदगी में इसके ये माल वापस करोगे। अगर इस पन्ने समाज पर नजर करो, आज हमारे समाज में इस बारे में इंतहाई कोताही है। एक तो हम पहले यतीम के माल की हिफाजत ही नहीं करते हैं, गौड़ वली तम मालस हिफाजत कर, अब अगर हिफाजत करेंगे भी तो
इसराफ से काम लेते हैं, पूरा माल सो वो सारा क्या हड़प कर जाते हैं। दूसरा, जब उसको देने की नौबत आती है उस वक्त किलो काल से काम लेते हैं, दपन हाय माय उसना यूता लोगी में खर्च यूता तो उसमें से भी काटते हैं। दूसरा, फिर जब देते हैं उसमें गवाह भी नहीं बनाते हैं, गवाह बनावन तिश जरूरी। आखिरी का, इस आयत से उलमा ने एक और मसला निकाला है, वो ये है कि जैसे नाफहम बच्चे के माल की हिफाजत है, जैसे यतीम बच्चों की माल की हिफाजत वलियों के जिम्मे, उसी तरह जो यम जन वक्फ इमलाक, वक्फ गए मस्जिद हिंद इमलाक, या इसी तरह कोई जमीन पड़ी हुई है वक्फ की, या कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है किन की, वक्फ की, तो ये अगर सरकार की कोई जमीन या सरकारी इदारे कोई पड़े हुए हैं, युस तमिक मुलाजिम उस पर भी यही इतलाक होगा, यानी उसको उसकी हिफाजत करनी होगी। और इसके इवज में अगर वो गनी है तमिस पज अत मुआवजा नुन क्या मस्जिद हिंदिस खिदमत मज या दरसगाह हिंदिस खिदमत खर। हाँ, अगर वो फकीर है वो उनसे तनख्वाह ले सकता है, उनसे अपने जायज जिम्मन इमिस खर्चा तुम है, मगर उतना ही कि इसराफ की हद तक उसको जाना नहीं पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला दी आयत पर अमल करो तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।